हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ युवा प्रबोधन। ये एक टॉक सीरीज़ है जिसमें हम आप तक ला रहे हैं आपके यूथ लीडर्स को और उनकी जो रियल लाइफ है या रियल पर्सनालिटी है वो हम आपसे रिवील कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिव्यांश ठाकुर, जिनको आप जानते हैं CYSS के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे, जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन फाइट किया था और बहुत ही टफ फाइट दी थी अपने कॉम्पिटिटर्स को। दिव्यांश की पहचान इससे भी बहुत ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, इनके क्या शौक़ हैं और ये किस तरह से अपने माइंड को मतलब डाइवर्ट करते हैं या क्या इनकी फीलिंग्स रहती हैं थ्रू आउट, इसको आज हम जानेंगे इस टॉक सीरीज़ में। सो वेलकम टू युवा प्रबोधन दिव्यांश। Thank you so much. It's a pleasure being here. So we would like to begin with your family background and also your educational background. So my family background, my father is an advocate and he's been practicing the law for a good 25 years now. And my mother is the coordinator of a famous boarding school in Himachal. It's called Him Academy Public School. So it's a mixed batch when it comes to my parenting. And what about your educational background? I've been here since 2016. So I've done my bachelor's, master's in anthropology, and now I'm currently pursuing my PhD in the same department. It's been a very long time here. So what are your interests? As in how far you are interested in academics? Because since most of the people who are into politics or who are into such domains where you need to be present in public, frequently. So what is your liking or disliking for academics? Do you really like going to classes, attending, or maybe anything like? What's your take on that? I've been a particularly popular truant when I was in school, but I was smart enough to get through the classes. I enjoyed the learning material, and I believe there's a big problem with the education system where we don't treat all the people with the same. We treat all the people with the same yardstick. So that's the problem with the education system, and I never particularly liked going to school. When I came to the university, things were different because you had a lot more freedom to explore the things that you wanted to study, to explore things that you liked. So my love for poetry or for theatre and philosophy and all those disciplines actually happened because I got all the free time and the freedom to develop those interests in the university itself. So the university has given me a lot. So you're here in the university since 2016. So were you active in politics since the very beginning? What attracted you towards this, student activism? I had a very personal experience in my first and second year where I was struggling with medical issues and I could not attend classes, and I had applied for the Rhodes Scholarship at that time. When I was about to complete my bachelor's, and that's a scholarship where you get to go to Oxford and they pay you. So I went for the preliminary interviews, and then I had to furnish my degrees and my DMCs, and because of all the bureaucratic inertia that goes around this place, I just couldn't manage them. So there went away my shot at Oxford, and that's what I wanted to do for a very long time. And a lot of those things, and I saw that happening all around, and I felt so powerless and helpless at that point, that I found a way through politics to help myself and to help those around me out. And that is how I got into politics. So you had no inclination towards politics initially? I believe I was more of a creative individual. Before I read about politics, of course, I read about politics as an academic interest. So I was reading about ideologies and political philosophy and what else, Marxian works and right-wing philosophers. But उसके बाद when I actually got involved into politics, जो pragmatic politics on ground होती है, it is very different. तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड जब आप आए तो आपने जो पढ़ा था उससे क्या आपको डिफरेंस मिला और आपने उसको एंजॉय किया प्रोसेस को, या आपको कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमा हुआ कि यार ये करना है या नहीं करना है? जी, जब आप फेस करते हैं सिचुएशंस को जहाँ पे आपको लगता है that somebody is morally compromising, I think when you're in politics and you're in here for the right cause, तो आपका moral compass बहुत steadfast होना चाहिए, आपका moral compass fixed होना चाहिए, and when you yourself are ethical and you don't let those around you do anything which is unethical, then I don't believe there's a problem in that. अगर समाज में corrupt practices हो रही हैं
और आप भी करप्टिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो रहे हैं, तो आपने बदला क्या? आप राजनीति में आए हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आप भले पीपल, दैट्स व्हाई मोर एजुकेटेड पीपल आर नीडेड इन पॉलिटिक्स। बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरत है कि एथिकल लोग या पढ़े लिखे लोग जिन्हें समझ है सिस्टम की, वो सिस्टम में आए। पर आपको जैसे सिस्टम की समझ तो है, आपने इसको करीब से भी देखा है, पर एक जो प्रेशर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिविज्म में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट तो रहती है, इनडायरेक्टली कोई ना कोई बैकिंग मिलती है। तो कभी आपने ये फील किया कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर आपको ऑब्लाइज करना पड़ा उन लोगों को जिनके थ्रू आपको पावर आ रही है या फंडिंग आ रही है या जो व्हाटसोएवर जो भी आपको बैकअप मिल रहा है? I don't believe, never has the party imposed upon me a doctrine जहाँ उन्होंने कहा हो कि भाई यही करना है। I've had a relative degree of freedom to do whatever I thought was in the best interest of myself and the party. तो कभी इस तरह का डिलेमा सच कहूँ तो मेरे पास आया नहीं, ना मुझे कभी ये दिक्कत हुई। I have always aligned with what I felt. If that aligned with the party, that was well and good. तो जब ये इलेक्शंस हुए, आपको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया, आपको कहीं लगा कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपके पोटेंशियल को आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड ने कहीं ना कहीं हाइड कर दिया? क्योंकि एक वेव चलती है इंडिया में ना, इट्स लाइक कि ये इसको नहीं देना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मेनी अ टाइम्स कैपेबल कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल वाले होते हैं, उनका मेरिट जो है इग्नोर हो जाता है। तो कहीं आपको डिसहार्टन फील हुआ कि इट वाज नॉट मी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ my mistake, or maybe it was because of the political wave which was going around कि मैंने election जो है वो हार दिया capable होते हुए? Of course there are those factors, और कहीं पे भी कुछ इस तरह का होता है, you feel bad for a while। बुरा लगा था, मुझे भी कुछ वक्त के लिए लगा, but I wouldn't be a sore loser ना। There is a जनता की एक verdict है, और कहीं ना कहीं मुझ में भी गलतियां नहीं होंगी, कहीं ना कहीं मेरे कैंपेन में गलतियां नहीं होंगी, तो उससे खुले हाथों से स्वीकार करना चाहिए। kudos to the winner as well। तो इस मामले में, और what is winning and losing? एक बार आप हार गए, जिंदगी बहुत लंबी है, तो हार जीत तो चलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ये सोच के तो नहीं आया था ना कि पॉलिटिक्स में कि प्रेसिडेंट बनूंगा, ये सोच के आया था कि मेरे और मेरे आसपास के लोगों की मदद करूंगा। जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आती है, आई फील गुड व्हेन आई एम हेल्पिंग पीपल आउट, वो तो मैं इसके बिना भी सर्व कर रहा हूँ। और जिंदगी भी बहुत लंबी है। Ever since I've lost, I think I've doubled down on politics। मैं और जोर लगा के मेहनत कर रहा हूँ। ये हमने रीसेंट प्रोटेस्ट में भी देखा था, चाहे वो डेंटल स्टूडेंट्स का हो या फिर फोरेंसिक स्टूडेंट्स का हो, आप वहाँ एक्टिव रहे। तो कहीं आपको कभी मलाल होता है कि यार मेरे पास ये पोजीशन होती तो मैं बेटर कर पाता? क्या पोजीशंस इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटिक्स में? पोजीशंस ऑफ कोर्स, अगर मैं आइडियलिस्टिकली बोलूं तो मैं कुछ भी आपको जवाब दे सकता हूँ, पर सही जवाब यही है कि पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं पॉलिटिक्स। पर ये बात नहीं है कि सिर्फ पोजीशंस ही हैं। आई थिंक आपका पर्सनल कैलिबर क्या है, आप किस तरह से चीजों को फेस करते हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद जावेद अख्तर का शेर है कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा ना होगा कुछ तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा ही सही। तो जो आपने ये तजुर्बा लिया एक बार के लिए, आप एक एग्जाम भी देते हैं तो फेल होता है तो काफी दिन तक दर्द होता है, तो आपने इससे डील कैसे किया? क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स रातों रात एक स्टारडम दिलाने वाली चीज है, एक प्रेसिडेंट बनना ये जेनिथ है। आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो इससे ऊपर कुछ नहीं है स्टूडेंट एक्टिविज्म में। तो आप एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटर मतलब रहे सबके लिए, ऐसा नहीं कि आपने कहीं थे ही नहीं और आप वैसे ही हार गए, पर आपने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, पूरी उम्मीद लोगों की थी कि आप जीतेंगे। तो इस हार्ट ब्रेक से आपने डील कैसे किया? क्योंकि ये तो आप नहीं कह सकते कि दर्द हुआ ही नहीं। जी, मुझे लगता है मैं जिंदगी में फेल बहुत हुआ हूँ, बचपन से लेकर आज तक I've been a habitual truant, और मैं इतना फेल हुआ हूँ with the fact this is something my father told me when I was very young, because I was what you would call perfectionist। होता है ना आदमी की हर चीज उस ऑर्डर में ही होनी चाहिए, and when you're a perfectionist you stop doing things in fear of failing, so you just say कि हाँ मैं इस चीज को नहीं करूंगा, because कहीं ना कहीं अंदर डर होता है, फिर आप बहाने देने लगते हैं कि मैं इस काम को नहीं करूंगा because I'm afraid of failure। So that is what my father said, that you should never be afraid of failure। कुछ ना कुछ हर तजुर्बे की अपनी अहमियत है और उससे निकलता ही है। So you know the night when the results were declared,
I was there in the counting. I was there in Golden Jubilee में बैठा था और मुझे बहुत नींद आ रही थी बिकॉज कई रातों से सोए नहीं थे, 1-2 महीने से दिन रात काम कर रहे थे. सो आयुष को मैंने कहा कि आयुष आप जाके काउंटिंग देखें. मैं जाके सो गया. जब मैं उठा तो रिजल्ट आया तो दे सेड यू लॉस्ट. मैंने बोला चलो पार्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं. अब एवरीवन हु वाज अराउंड मी दे हैड टू ईट. एवरीवन वाज अ बिट मरोज. थोड़ा सा दुख होता ही है, बट वी गॉट ओवर इट द नेक्स्ट डे जस्ट फाइन. आई बिलीव फेलियर एक आई एम नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, but my grandfather made me read the Bhagavad Gita and pardon my Sanskrit, but खंड 2 में भगवद गीता में एक श्लोक है which I've taken to heart. Goes सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजय ततो युद्धाय युजस्वम नैवम पापम वाप्स्यसि. So treating like pleasure and pain, victory and defeat, loss and gain, wage war for the sake of the war, and thus you shall not incur sin. So I've fought the war for the sake of the war, and now I'm not incurring any sin. So that's that. Okay. So what आपने जो तजुर्बा ले लिया है, अब उसका आपके लिए फ्यूचर में हम क्या आउटकम देखेंगे? आप क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हैं और राइट नाउ यू आर अ जूनियर रिसर्च, तो आप टीचिंग प्रोबेबल प्रोफेशन आपका इससे लग रहा है, या आपने कुछ और सोचा है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है क्योंकि आप तजुर्बा ऑलरेडी ले चुके हैं? और पॉलिटिक्स का चस्का एक ना बहुत बुरा होता है जहाँ इंसान जीतना चाहता है, पावर में आना चाहता है. तो आपने अब अपने लिए फ्यूचर कैसा सोचा है इस एक्सपीरियंस के बाद? See, future, I have been always academically inclined, so PhD is a degree that I'm going to get anyhow, in any way. I've had academic interests और research में बहुत शौकीन तौर से भी करता हूँ. Even in my bachelor's and master's, I published like 9 odd papers before I was even in PhD. पर अभी के लिए मेरी values थोड़ी change हुई हैं. अभी I'm considering taking a full-time role in politics. So I'm going to do a PhD nonetheless. But जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, you can never predict these things. क्या होगा, क्या नहीं होगा. I can set a goal, but currently I'm taking one day at a time. Okay, so we can probably see you sometime in future being a minister or an MP, maybe somewhere. ये आपके मुंह में गुड़ सेक्टर. तो आप हमें मिले हैं जिसने ये कहा कि yes, I'm considering politics as a career option, right? सो आप पॉलिटिक्स को यूथ के एज अ करियर ऑप्शन कितना वायबल देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसमें ग्रोथ कितनी हो सकती है, क्योंकि आपने इसको करीब से देख लिया, आप कंसीडर भी कर रहे हैं? जी, मुझे नहीं लगता. सी, इफ आई वुड से समथिंग व्हिच वुड बी अ ब्लेटेंट lie, that would not be right. It is a risky option. To do big things in life, you've got to take risk. तो ये बात नहीं है कि this is the safe secure option. यहाँ पे there are things that are left to fate. कुछ भी हो सकता है. You can be the best in the lot and you can still lose and you can still not be in power, या फिर टिकट कैंसिल, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में. पर it is better to have failed gloriously than to have never tried at all. अगर आपका मन है, अगर आप इस चीज के लिए आना चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे पावर है और सोशल वेलफेयर की आपको पड़ी नहीं है, लोगों की आपको पड़ी नहीं है, और आपका all these things happening do not distress you every day, तो फिर आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई फायदा नहीं है. पर मेरा मानना यही है कि अगर आप फेल भी कर रहे हो, कोशिश तो करो ना. अगर कोशिश नहीं कर रहे हो, फेलियर से डर रहे हो, ऑलवेज इन योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट, तब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता. और अच्छे लीडर्स फिर मिलेंगे भी नहीं अगर वो ट्राई ही नहीं करेंगे, राइट? सो अब पॉलिटिक्स के लिए इसका मतलब बैकअप प्लान कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक रियलिटी तो यही रहेगी कि आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा. आपका बैकअप प्लान? Currently, I have no backup plans. I'm going all in and let's see how things turn out. कुछ ना कुछ. I believe ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, but I believe I'm smart enough that I can hold a job. So कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अगर ये नहीं होता. And also I'm doing my PhD, so that is working in my favor as well. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. इतनी चिंता, भविष्य की चिंता करके कुछ होने नहीं वाला है. अभी मेरे पास गोल सेट है, टारगेट सेट है. लोगों के लिए काम करूंगा. इफ दैट गिव्स मी रिवॉर्ड, दैट इज वेरी गुड. अगर नहीं मिलता है कुछ देखेंगे जरूर. दिव्यांश, क्योंकि आपने भविष्य की वैसे आप चिंता नहीं कर रहे, पर एक चीज जो जब हम इस फेज में होते हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटी फेज में होते हैं, तो एक चीज माइंड में लगभग सभी यंगस्टर्स के आ जाती है कि हम अपना लाइफ पार्टनर कैसा ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी क्लैरिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सॉर्टेड हो जाते हैं कि ऐसा कुछ करना है.
तो आपकी ड्रीम गर्ल जो है वो कैसी होंगी? क्या आपको एक, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स में ही फ्यूचर देख लिया, तो क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको लगता है कि होनी चाहिए उस लड़की? जी, आपने अटल जी का एक इंटरव्यू देखा है जहाँ पे वो करते हैं कि ऐसी बातें समाज में नहीं होती? पर फिर भी आप समाज में का हिस्सा है और आपकी लाइफ एज अ पॉलिटिशियन कभी भी कवर्ड नहीं रहेगी, तो आपने एक तो सोचा, क्वालिटीज तो सोची ही होंगी। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप जिंदगी गुजारने की सोच रहे हैं वो सुलझा हुआ होना चाहिए। यू कैन नॉट वेज अ वॉर एट टू फ्रंट्स। आप घर से बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप घर में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता। एंड मी पर्सनली, they say that men are attracted towards beauty. Mine is more, I think, intellectually inclined. I think it's if someone tickles my brain's fancy, that's what I am really interested in. So बाकी इतना मैंने, ऑनेस्टली मेरे घर में शादियां बहुत लेट होते हैं, तो ये ना अभी तक सवाल पैदा हुआ है और ना बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि घर आओ तो सुकून, राइट? अंडरस्टैंड, मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होती है एक आदमी के साथ। यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स यू। पर वही वो, द मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग इन एनी रिलेशनशिप ना। अगर उसके बिना यू कैन मेक अ ड्रीम पर्सन इन योर हेड, but the other person can never live up to the ideal that you have of that person in your head. So you've got to accept the other person as and who they are. तो फिर वो तो कभी आपका क्राइटेरिया हो नहीं सकता। मैंने गुड़िया बना ली दिमाग में और रियलिटी में the other person cannot live up to that. Then I am not in love with the person, I am in love with the idea of that person. आपका फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना, जी मैं बहुत शौकीन तो नहीं हूँ खाने का, पर आई एम मोर ऑफ अ दाल चावल पर्सन, ऑनेस्टली बहुत बोरिंग आदमी। तो घर का खाना पसंद करता हूँ। और कॉन्टिनेंटल में व्हाट वुड आई से, आई लाइक कॉन्च्यूनी पास्तास, आई थिंक दैट्स ऑल। बट आई एम मोर और लेस घर का खाना पसंद करने वाला रेगुलर दाल चावल पर्सन। तो घर के खाने से याद आया कि घर में मम्मी जो है वो बहुत कंसर्न रहती हैं, और पॉलिटिक्स ऐसा है कि जहाँ पे वायलेंस जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई, यंग लड़के जो है अपनी जान गंवा देते हैं। कभी आपको ये फियर आया माइंड में, या आपकी फैमिली को कभी फियर आया, उन्होंने कभी आपको रोका कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, क्यों कर रहे हो ये? क्योंकि आपको तो सिंपल बैकग्राउंड हो गया। जी मेरी फैमिली ने ऑनेस्टली बचपन में बहुत कोशिश करी, क्योंकि मैं आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं कोई शरीफ नहीं था। तो मैं कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता रहता था, कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ता रहता था, या कुछ ना कुछ हरकतें मैं करता ही रहता था। सो आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज्ड कि इसको बोलने का कुछ खास फायदा है नहीं, तो दे स्टॉप प्रोडिंग मी। एंड उसके बाद फिर एक वक्त के बाद उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग माई फादर इज़ वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट, एंड मम्मी इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटिव, बट उनको थोड़ा कंसर्न ऑफ कोर्स रहता है। सो शी ऑलवेज गाइड्स मी कि हाँ कोई पछड़ों से दूर रहना है, कोई झगड़ों से दूर रहना। ऑफ कोर्स शी इज़ माई मदर आफ्टर ऑल, वो रहेगा ही, बट शी डजंट, आई बिलीव माई पेरेंट्स आर वेरी मच द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स ना। एक साइकोलॉजी में करते हैं ना, दी यू टॉक अबाउट द डिवावरिंग मदर, कि एक मदर इतनी कंसर्न्ड है बच्चे के साथ कि द मदर डिवावर्स हर मेटाफोरिकली। दैट इज़ नॉट माई मदर एट ऑल। माई मदर हैज़ ऑलवेज बिन कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने जीनी है, बस ख्याल रखो अपना, खाना पीना टाइम से खाया करो। ठीक है, तो आप जो है पॉलिटिक्स को अपना फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और इलेक्शंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जो भी पार्टी है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको क्या लगता है क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए? किस पार्टी को, जो यंगस्टर्स हैं जो आपको देख के इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, वो कैसी क्राइटेरिया क्या सेट करें, या किस तरह की पार्टी को देखें जब वो वोट कर रहे हैं? मेरा मानना है द करंट पॉलिटिकल सिनारियो इस देश में हैज़ बिन वेरी मच वन ऑफ धर्म, जात पात, और जितना कॉम्युनल माहौल इस वक्त है ऐसा शायद इतिहास में देश ने कभी देखा नहीं। तो आई बिलीव पॉलिसी और परफॉर्मेंस में पीपल वोट फॉर परफॉर्मेंस। तो जो टैंजिबल्स हैं ना, जो समाज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड थिंग्स लाइक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, दैट इज़ व्हाट पीपल शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। और उन चीज़ों को देख के आपको वोट देना चाहिए, ना कि कौन हमारी ज़ात का है,
कौन हमारी कास्ट का है, कम्युनिटी का है, ये चीज़ें देख के वोट नहीं करना चाहिए. बाकी आई वुडंट फोर्स इट ऑन एनीवन. पीपल शुड जज फॉर देमसेल्व्स एंड देन चूज व्हाटएवर दे थिंक इज राइट. और फिर इस चेंज को लाने के लिए, क्योंकि आप लार्जली इस बात को तो मानेंगे ही जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया कि जो मेरिट है वो हमेशा पार्टी के पीछे रह जाता है, पार्टी कवर कर जाती है एक तरह से, इतना पॉलिटिकल वेव चलती है. तो इसको कैसे कैंडिडेट अपने आप को आगे कैसे ला सकता है, जो आपने ऑलरेडी एनालिसिस तो कर ही लिया होगा कि आप में इतना मेरिट रहा, आप काफी एजुकेटेड हैं और आपने मतलब यू आल्सो वेल रेड, यू हैव वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज. सो आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप इस तरह के कैंडिडेट्स को अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए, क्या गलती रह जाती होगी कि कैंडिडेट्स का मेरिट देखने से लोग चूक जाते हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि द पार्टी हैड टू कवर अप फॉर एनीथिंग. इलेक्शंस आर वन ऑन स्ट्रैटेजी. तो हमारे एंड पे मे बी इन कैंपेन देयर माइट हैव बीन अ स्ट्रेटेजिक फेलियर. तो ऐसा तो नहीं था. मे बी 2 days बिफोर द इलेक्शंस वी वर विनिंग द इलेक्शंस. 2 दिन में हुआ है जो हुआ है. तो स्ट्रेटेजिक फेलियर्स भी होते हैं. एंड आई डोंट बिलीव एनी इंडिविजुअल इज बिगर देन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर आई एम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार मेरिट दिखेगी नहीं. यूनिवर्सिटी हैज लिंगडो नॉर्म्स. यूनिवर्सिटी में यू कैन ओनली कंटेस्ट वंस. तो परिस्थितियाँ अलग होती हैं. इट्स नॉट ऑलवेज कि पार्टी मास कर रही है या फिर कैंडिडेट सामने नहीं आ पा रहे हैं. दैट्स नॉट द केस. सो इट वाज स्ट्रेटजी दैट मैटर्ड. यस. ओके, सो अब हम आते हैं आपकी पर्सनली आप कैसे, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है. पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए तो आप एज अ पर्सन क्या है, आप किस चीज में अपना मैक्सिमम वक्त गुजारना पसंद करते हैं? जी, I was very much of an introverted kid growing up. और बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करता था, शर्माता भी था. और वो कहते हैं ना कि मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पे सॉस मांगने से मुझे शर्म आती है. तो कुछ वैसा हिसाब था. बट एज आई ग्रू ओल्डर आई वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन एंड आई वर्कड ऑन माई पीपल स्किल्स. और बहुत कुछ हुआ, पर उस बचपन ने मुझे इट इम्पॉर्टेड मी विद द हैबिट ऑफ रीडिंग. My father had a client which was a big publisher at that point, और उन्होंने काफ़ी किताबें हमें दी थी. तो वो किताबें बचपन में कुछ और तो करने को था नहीं. केबल नेटवर्क सैटेलाइट डिश पे सिर्फ दूरदर्शन आता था, तो कुछ देखने को भी ख़ास था नहीं. तो आई वुड जस्ट सिट डाउन एंड रीड दोज बुक्स एंड दैट इज़ हाउ आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग. एंड आई वुडंट से I have not a lot of people talk about mental health, but I have clinically diagnosed adult ADHD. So the amount of hobbies that I've sampled and then left is probably more than what people would sample in a lifetime. So I was in a band in school. We were a punk rock band. So I play the rhythm guitar and the vocals. We were also used to do photography and poetry, and big on poetry. There was a very big poetry scene. I was a part of that. A lot of things, but mostly at this point I'd say music is an afterthought. अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. Poetry और reading के लिए मैं वक्त निकालता हूँ because that is something that I believe is essential to my formation. That feeds your soul. Yeah. So आप पोइट्री से मुझे याद है कि आज वर्ल्ड पोइट्री डे भी है. आज वर्ल्ड पोइट्री डे है. Probably I was listening to somebody on radio and she was saying that one. I cannot confirm that, but yes. So the anchor was saying that. So क्योंकि पोइट्री आपका इंटरेस्ट एरिया है, so you want you to recite something for followers, for our viewers. और आप पॉलिटिकली या कुछ बहुत ही वो रियलिस्टिक मत करिएगा, कुछ रोमांटिक या कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी जो फैन फॉलोइंग सेंसर ना हो जाए. नहीं सेंसर कोई बात नहीं. आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है उनको पता चलेगी. आपका बड़प्पन है, आप ही कह रहे हैं मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग. आई बिलीव अगर इतनी फीमेल फॉलोइंग होती 70% of the voters in the university are women, तो मैं जीत ही जाता. नहीं, but at least some people are there. 70% के 70% वहाँ थोड़ा ना गए. Of course. This is a poem by Agha Shahid Ali that I've translated. So why don't I recite? ये मुझे पता है कैसा महसूस हो रहा है.
जब मेहमान घर में आते हैं ना तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके सुना दो, कैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे. So this is called Stationery. It's by a Kashmiri poet by the name of Agha Shaidati. So he wrote in English. The lines go: the moon did not become the sun. It just fell on the desert in great sheets, reams of silver hand-pressed by you. The night is your cottage industry now. The day is your brisk emporium. The world is full of paper. Write to me. And my translation is: आज माताब आफ्ताब नहीं बना, बस बिछा गया सहरा पे जैसे वर्के चांदी तुम्हारे हाथों में पिसा हो. ये शब तुम्हारा ही कारखाना है, ये शहर तुम्हारी सरगर्म दुकान. दुनिया में कागज़ ही कागज़, मुझे ख़त तो लिखो. वेरी डीप. सो अब देखिए आपका लगभग जैसे जो आप इंसान हैं वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है. एंड आई एम श्योर अ गुड नंबर ऑफ पीपल माइट रिग्रेट कि ये क्यों छोड़ दिया गया. दिव्यांश, टुवर्ड्स द कंक्लूजन, आपने कम्युनिकेशन को कहा कि आपने बहुत वर्क किया. तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के ऊपर. हमारी रिसर्च भी लार्जली उस पर बेस्ड है कि यूथ लीडर्स में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं. नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अबाउट बीइंग माइंडफुल इन योर वर्ड्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन. सो हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग इट? और आपको अगर नहीं कर रहे हैं तो वी वुड लाइक टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आप इसको 10% अपनी लाइफ में अब बढ़ा देंगे. I can only promise you कि इससे 10% मैं अपनी लाइफ में बढ़ा दूँगा, hopefully. But usually I'm very respectful towards the other person. But there are times अगर मैं protest पे हूँ and there is a time to call, तब I cannot be completely respectful. अगर oppression हो रहा है, oppressor को भी मैं जी करके बुलाता रहूँगा तो फिर शायद बात नहीं बनेगी. But I believe there is these are Gandhian ideals and I believe in Gandhi very much. But Gandhi said one thing when he was, I believe, in jail. He said, if it were not for my sense of humor, I would have died long ago. So I believe in that Gandhian ideal. So you are like practically not following what the Gandhian ideals are. So because Gandhi was a lot in favor of truth and non-violence. So would you like to say that कि आपके लिए practically possible ही नहीं है कि? I am in favor of truth and non-violence. I am not in favor of communication which is always respectful towards the other. All right, so okay. So The truth must always stand out. Correct. The truth is supreme. And what about the malpractices during the the election process, the entire election process? Are you in favor of it? Because in any form, if you're neglecting your duty, say we say that if you are not doing what you're supposed to do, it is a form of violence towards others. If I'm an officer and if I'm neglecting all my duties and just having a pleasure time because of my position, so I am being violent to others. So do you think that this kind of non-violence can come into practice? Absolutely, yes. Non-violent revolutions are the core of everything. Even Gandhiji, if you take the ideal, during Quit India movement, he gave the slogan, do or die. So even Gandhiji, who was a moral idealist, when he gave the slogan, he had to call people out because the oppressors were oppressing people. Absolutely. So even Gandhiji in his ideals was flexible and he was more pragmatic than he's given credit for. For the communication, for the part of communication you're talking about, there is this phrase in Sanskrit, it's a Vediki hinsa hinsa na bhavate. So उसका मतलब है कि जो वेदों में कहा है, शास्त्र सम्मत जो हिंसा है वो हिंसा नहीं कहलाती. और वो हिंसा क्या है? जहाँ आपको किसी की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, किसी के राइट्स के लिए करना है. बस हमारा एक कंसर्न सिर्फ ये है कि वो प्रोटेक्शन थोड़ी सी माइंडफुल हो जाए, एज इन की अब्यूजिव लैंग्वेज कंट्रोल. जी एब्सोल्युटली एवरीथिंग शुड बी रिस्पेक्टफुल. अब आप स्ट्रेट आउट किसी को गाली तो नहीं देंगे, बट वही बात है कि जो जिस धार्मिक हिंसा की आप बात कर रहे हैं, आई वुडंट इवन से उस पर आपको हिंसा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी या उस रूट को लेना ही पड़ेगा. बट आई कैन नॉट से कि आप कोई आपके सिर पे पैर रख रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि जी पैर हटा दें प्लीज़, तो वो तो हो नहीं पाएगा. तो ऑफ कोर्स यू गॉट टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, बट एवरीथिंग हैज गॉट एन एलिमेंट ऑफ pragmatism in it. Even Gandhiji, when he said those things, he was as I said, more pragmatic than he's given credit for. Even Martin Luther King was. Absolutely.
because that is why they could, protest against the authorities, which was so powerful at that time, right? So, coming to any experience which has completely broken you, right? Because what I can figure out from our interaction is that you're an emotional person, a sensitive person. So you've been talking about failures, that you have failed many times. So this didn't really matter for long. So any failure which affected your mental health, and how did you overcome that? That circumstances which were around you with the help, any kind of therapy you resorted to, or how did you buck up yourselves? How did you revive yourself into becoming a better individual after that? I think my life has been a collection of failures from one point to the other. So I think I'm fairly well equipped when it comes to coping with them at this point of time. But there was a time when I applied and I couldn't get the scholarship. I was sad, morose for a day, maybe dejected. And I also sat down to the civil services quite a few times. And maybe after the fourth attempt, when I couldn't crack it, I was in Delhi. This was COVID time. And I was preparing for a good 6 years. So that was a very heartbreaking moment for me. And for a month, it really affected me because I thought, अब मैं क्या ही करूँगा ज़िंदगी में? पर वो कहते हैं ना कि ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. And I believe I went, I don't know, I wouldn't say depression, but I was very sad for a very long time. But then I figured out the same thing कि क्या हो गया? बहुत कुछ सीखने को मिला है, तजुर्बा हुआ है, क्या ही कर सकते हैं और? So I got up and one step at a time I took it one day at a time, and that's been my core philosophy since that day on, and I've never looked back. कि take life one day at a time. इतना जो तुम प्लानिंग कर रहे हो, 20 में ये करेंगे, 25 में ये करेंगे, 30 में बच्चे हो जाएंगे, 32 में ये करेंगे, 40 में 50 में रिटायर हो जाएंगे. Life doesn't always go to plan. There are 200 things that have to go right. Life is a game of dice. तो अगर इतना मैं परेशान होऊंगा और इतना स्ट्रेस लूँगा हर छोटी छोटी चीज़ का, then you got to be able to face the brutality that is life every day. और ये बहुत ज़रूरी है कि निराशा और हताशा इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए, पर जब आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना ज़ोर लगाएं कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए. When I was done with the campaign, I knew that मैं पिछले दो महीने से सिर्फ 2 घंटे रोज़ सो रहा हूँ, 3 घंटे रोज़ सो रहा हूँ. I've completely broken my body. I've completely कौन सी जगह है जहाँ से खून नहीं निकल रहा है. My throat was gone by the end of it. मुझे चक्कर आ रहे हैं, but I was pushing it completely because मेरे सामने एक vision था, and I wanted to achieve that. But उसके बाद मैं सो गया because I was done with that. क्या ही हो जाएगा? I've done my work. I know that there was nothing else that I could have done to change the circumstances. And things that are stoic philosophy में बात करता है ना इसके बारे में, there are that you can only control the things that you can control, और जो external चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दें. That is not something you can manage. That is how I take life at this point. जो मेरे कंट्रोल में है वहाँ मैं 110% करूँगा. जो external factors है I let them be. उनके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ना उनके बारे में सोच के मैं कुछ कर सकता हूँ. So you're a happy, cheerful being as of now? Completely? No? 90% of the time. Yeah, 90%. So what about those 10% of times where you feel low or maybe lonely, or you feel that life is not going as per your plans or in the way you wanted it? So the 10% of the times I quietly and simply bide my time until I get to the 90% of them. Amazing. I can see a lot of positivity in you. Though, of course, you have gone through a lot of struggles, because UPSC these days, a good number of people are into depression because of UPSC. And it is a pain in the neck for a good number of people. I believe you suffered as well. Yes. So, because of that, I think one shouldn't stop. Because destiny always has a plan for someone, you know. I in an interaction with somebody, I was told that you are not the one who's running the world. You know? And if there is a creator, and even if you do not believe in any creator, if there is universe, nature, they have decided a plan, a role for everybody. So let it be and just go with the flow. And I'm sure that a talented youngster, young leader
an academician, and also very, very bright student, which you have been throughout your schooling or university days. This will pay you in future, and I'm sure whatever pursuits you are going to, enter into in future, you will certainly be having some kind of footing in that. So we are very positive about you. After your interaction, I am sure a good number of people must have felt enlightened that yes, such kind of people do exist in politics. And on the Gandhi meter, we would like to rate you as extraordinary, a pro-Gandhian, because you might not be following those principles as it is, but the truth philosophy of Gandhi says that you have to adjust it with the times, which are coming in front of you. So it was wonderful interacting with you. Is there anything, any piece of advice or anything you would like to share with our... No, all the things that you said are very magnanimous of you. आपका बहुत बड़प्पन है, but मुझे इतना चने के झाड़ पे ना चढ़ाएं, please. Thank you, Divyansh. It was wonderful interacting with you. And It was a pleasure. yeah, so we are looking forward to more such interactions in future, where we, like, when once you enter the real political field and we get to know you more as a politician, as maybe wherever you're placed, and then we interact, and when we get to know how happy you are and the 10% of the pain which you are suffering from has been removed. Thankfully, वही आपके मुंह में घुट सकता है फिर से. Okay. Thank you, ladies and gentlemen. This was all about today's conversation, and I'm sure you had a great time in listening to such enlightened words from Divyansh Thakur. Thank you, Divyansh. Thank you so much.